On the occasion of Vishwa Yuvak Kendra completing 59 years, let's know about their history. It's a pioneering organization in the field of youth development and was started in the year 1961 by the great Indian leaders and social reformers. VYK's vision is to orient the youth to the development process and enable them to participate in the process of nation building, to promote national integration and international understanding by developing youth leadership and providing a forum for youth from diverse backgrounds, and to promote research in youth work. Come, let's hear about the programs and strategies of VYK from Mr. Manjunath K. and Mr. Rajat Thomas. आज हमारे लिए बेहद हर्ष की बात है. It's a matter of great pleasure, honor, and we can say a delight that today we are going to celebrate our 59th Foundation Day, Vishwa Kendra, which is a unit of Indian Youth Center Trust. हम सबके लिए ये बेहद खुशी की बात है. विश्व केंद्र एक ऐसी संस्था है जिस संस्था में जुड़ने के लिए देश दुनिया भर के हर युवाओं के अंदर एक इच्छा होती है, एक सपना होती है कि आगे जाके मैं भी विश्व केंद्र जैसे संस्था या फिर जितने भी देश के जाने माने वाले युवा संस्था है उन संस्थानों में जुड़ के अपने योगदान दूं, देश निर्माण में अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन दूं. आज हम सब लोग ऐसी फोरम पे जुड़े हैं. इसके लिए सबसे पहले तो मैं विश्व केंद्र जिस टीम के मैं कर्मचारी हूँ उसके लिए मैं पूरे अपने कलीग, साथी लोग और अपने बोर्ड को सबसे पहले धन्यवाद दूंगा for this great opportunity. Vishwa Kendra started various programs and has run many successful programs through which youth from the all corners of the country, got benefited. They came here, they came to our center, they got trainings, they went back to their areas and they implemented what they have learned, being in Vishwa Kendra. So we have a programs that's in-house program. Second one is state level thematic programs. Third one is integrated community development program, certificate course in youth work, entrepreneurship development for youth, entrepreneurship, collaboration with institutions on social issues. VYK's capacity enhancement strategies, we are basically taking the twin track strategy, which is basically location-based and nature of programs. So location-based, basically, I would like to emphasize on this. In this, we have our in-house programs and our state-level programs. Many of our programs are conducted at Vishwa Yuva Kendra at our campus in Delhi. A lot of people around the NGO sector or the civil society sector who are not able to attend these programs in Delhi. So for those activities, we basically take these in-house programs to the states. It is an extension activity in which the trainings, the workshops, the capacity building is all held in the local language. The nature of our programs, if you see, capacity building is one of our main aspects of main aspects that we're working towards. And in this, there is a lot of TOT, training of trainers, that we do. And because as we have different representatives and representatives of different NGOs who come to us to be trained, so these people go in turn to the respective villages, the respective areas, and go and train other NGOs and other people in the ground. Then we have awareness and generation and towards sensitization, which is a very important part, because as we know, a lot of I think a lot of us lack awareness, and so we are doing that part. We are giving awareness generation programs in various schools, in various colleges, in various communities. The turn of this decade will bring new challenges and opportunities for India and its citizens. It is now time to re-emerge India with a more resilient and strengthened socio-economic conditions. Gender equality, social harmony, and economic competitiveness shall assume a center stage in policy making. As this new India emerges, Vishwa Yuva Kendra assumes its role as a catalyst of change. This webinar will help participants understand about their role as fellow citizens and as a change maker, giving them a common platform to discuss innovative ideas and practical views
with scholars and practitioners. Now, our eminent speakers will speak about the role of CSOs in this re-emerging India. सिविल सोसाइटी का मतलब हुआ नागरिक समाज, जिसमें राज्य, बाजार, धर्म इन सब की सत्ता तो है, लेकिन नागरिक सत्ता इन सब से बड़ी है, इन सबको समेटती है। और नागरिक संगठनों का निर्माण किसी भी समाज के स्वस्थ या अस्वस्थ होने की एक पहचान है। सिविल सोसाइटी की जो भूमिका है वो 3 मोर्चों पर है। एक तो भारत जिस लोकतांत्रिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्रांति से गुजर रहा है, उस क्रांति को आगे बढ़ाना। ये क्रांति शांतिपूर्ण हो, लेकिन ये क्रांति सफल हो। और इस क्रांति के 5 मोर्चे हैं, और इन 5 मोर्चों पर सरकार बाद में आएगी, समाज को पहले आना होगा। पहला मोर्चा आप जानते ही हैं, जाति का मोर्चा है। उससे भी पहले का मोर्चा औरत मर्द के रिश्तों का है। तीसरा मोर्चा गरीब और अमीर का है। चौथा मोर्चा धार्मिक एकता का है, और 5वां मोर्चा क्षेत्रीयता का या भाषाई विविधता का है। इन 5 मोर्चों पर हमारे पुरखों ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्यों का सिलसिला बना करके बहुत सारे प्रयोग किए। उन प्रयोगों में से बहुत सारे प्रयोगों को अब हमने अपने संविधान का सिद्धांत बना लिया। लेकिन संविधान की किताब, जो दुनिया के बेहतरीन संविधान में गिनी जाती है, ये पढ़े लिखे लोगों का दस्तावेज बन के रह गई है। रोज रोज की जिंदगी में आप जितना पढ़े लिखे लोगों से दूर जाइए, आप जितना महानगरों से दूर जाइए, उतना फिर परंपराओं का प्रबल होना दिखाई पड़ता है। और वहां पर नागरिक समाज के हस्तक्षेप से, उसके प्रशिक्षण से, आज भी जो आपके 163 लोग जुड़े हुए हैं विभिन्न संगठनों से, ये हमारे माध्यम है नवनिर्माण के। भारत का जो संकट है वो अजीब संकट है। जिनको परिवर्तन चाहिए, उनमें परिवर्तन के लिए संगठित होने और आवाज उठाने की क्षमता नहीं है। और जो संगठित है और आवाज जिनकी बहुत ज्यादा है, उनके अंदर परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है। इस अंतर विरोध को कौन तोड़ेगा? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन तोड़ेगा। तोड़ने का मतलब रचनात्मक तरीके से। नेतृत्व निर्माण भी जाति व्यवस्था और पर्दा प्रथा से प्रताड़ित भारतीय समाज के स्त्री पुरुषों के लिए बहुत बड़ा सपना है। नेतृत्व का अवसर नहीं मिलता, नेतृत्व का संगठन नहीं बन पाता। यानी संरचना में ये बहुत बड़ी बात हुई पिछले दिनों, और शुरू बिहार से हुई कि पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% स्थान का आरक्षण किया गया। नतीजा जो निकला उसको देख के बिहार की देखा देखी शायद पिछले 70 साल में बिहार से पूरे देश को सिखाने की ये बहुत बड़ी प्रयोगशाला बनी कि पूरे देश में महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया, क्योंकि महिलाओं का ग्रामीण लोकतंत्र के नेतृत्व में हिस्सेदारी करना पूरे गांव का चेहरा बदलने में सफल हो गया। सिविल सोसाइटी हमें एक परिवार के सदस्य से एक देश का नागरिक बनाने का रास्ता बनाती है। लेकिन जब समाज के अच्छे लोग, आदर्श नागरिक आके कोई बात कहते हैं तो लोग कहते हैं जरा ठहर जाओ, ये निस्वार्थी लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, ये संत लोग हैं, इनकी सुनो। इसीलिए गांधी लोग की नहीं सुनते थे। और आज भी प्रधानमंत्री चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस प्रदेश का हो, उसको अगर भारत के लोगों से संबोधित करना हो तो सबसे पहले गांधी जी की लाठी पकड़ करके आगे आगे चलते हैं कि बापू ने ऐसा कहा था, बापू ने ऐसा कहा था, इसलिए हमारी भी सुन लो। और गांधी की जो महत्ता है वो नागरिक समाज के प्रवक्ता, प्रतिनिधि और नायक के नाते है। गांधी म्युनिसिपैलिटी के भी मेंबर नहीं बने थे, लेकिन गांधी की शक्ति नागरिक आदर्शों के प्रति समर्पित एक आदर्शवादी, मानवतावादी मनुष्य की शक्ति थी। वो हम सब के अंदर है, और उसको जगाने का माध्यम शिक्षक है, परिवार है। और शिक्षक और परिवार अगर समर्थ नहीं है तो नागरिक संगठन है। इसलिए विश्व योग केंद्र का काम अमृत तुल्य है। विश्व योग केंद्र जैसे अन्य संगठनों का काम बहुत जरूरी है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि इस सुंदर उत्सव के मौके पर आपने मुझे बुलाया। तो लॉकडाउन का मतलब क्या होता है कि हम लोग बाहर नहीं निकले, वी कैन नॉट मिक्स विद ईच अदर। तो उससे क्या होता है कि गरीब आदमी जो है वो अपनी जो डेली कमाता है और डेली जो खर्च करता है, अपनी चीजें मुहैया कराता है, वो स्टॉक अप नहीं कर सकता। तो वो एकदम से स्टार्व करने लगता है जैसी उसकी आमदनी खत्म होती है।
तो इसीलिए बहुत सारे लोग रूरल एरिया में वापस जाने लगे, माइग्रेट करने लगे। और जो कॉटेज सेक्टर है, कॉटेज सेक्टर के पास बहुत कम पूंजी होती है, वो जो उसकी सेविंग होती है वही उसकी पूंजी होती है। तो वो क्योंकि जब काम नहीं हो रहा है तो सेविंग को अपना कंज्यूम कर लेता है, तो उसको दोबारा काम करना शुरू करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी क्या हो रहा है कि वी आर फेसिंग द वर्स्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ल्ड, कि लॉकडाउन में जो करना चाहिए था वो हमने किया नहीं और इकोनॉमी स्टॉल कर रही है। जहाँ पे जैसे कि चाइना है, वहाँ पे ब्रूटली उन्होंने लॉकडाउन इंप्लीमेंट किया, तो इकोनॉमी को 2 महीने बाद उन्होंने रिवाइव भी करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ ये समस्या रहेगी कि लॉकडाउन जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस समय सबसे ज्यादा केसेस भारत में हो रहे हैं कि हमारा लॉकडाउन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और जो बिजनेस है, दे आर यूजिंग their reserves are also past saving, so therefore everybody in the economy has started to dissave. That means the resource base of the economy has declined. The resource base of the economy is now shrinking. लेकिन इन्वेस्टमेंट है, उसी से ग्रोथ होती है। और जब आपने देखा कि डिमांड कम हो गई तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया, और जब इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो गई। यानी कि जैसे मारुति है, वो 100 कार प्रोड्यूस कर सकती है लेकिन 10 कार प्रोड्यूस कर रही है, तो 90 की कैपेसिटी उसकी अनयूटिलाइज है। और जब उसकी अनयूटिलाइज कैपेसिटी है तो इन्वेस्टमेंट करना रोक देगा। अब हमारे समाज में 2 तरह के सेक्टर है, एक तो संगठित क्षेत्र है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयज की बंधी बधाई आमदनी होती है और वो उससे तनख्वाह कमाते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में CMI कहता है कि 1.4 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, यानी कि नौकरी भी गई और बहुत सारे लोगों के सैलरी कट हो गई। जैसे मीडिया में एडिटर्स ने अब 0 तनख्वाह ले रहे हैं, या बहुत सारे एडिटर हैं उन्होंने कहा कि भाई 10%, 20%, 40% की कटौती कर दी तनख्वाहों में। उसी तरह ऑर्गेनाइज सेक्टर के और हैं, वहां पे भी तनख्वाह की कटौती हो गई। तो आजकल जो कंजम्पशन हो रहा है वो सिर्फ एसेंशियल का हो रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, दे आर ईटिंग इनटू देयर सेविंग्स बिकॉज उनका, लेकिन बैंकों में इंटरेस्ट रेट कम हो गया है तो उनकी परेशानी और बढ़ गई है। तो वहां पे तीसरी बात क्या है कि जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग का एक वेल्थ इफेक्ट होता है, यानी स्टॉक मार्केट गिर गया, रियल एस्टेट मार्केट गिर गया, तो दे फील दे आर लेस वेल्थी। यहीं पे CSOs का रोल आता है कि जो सोशल और पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है उसके लिए क्या करना है। तो मेरा मानना है कि जो एक न्यू नॉर्मल आएगा उसमें प्रोडक्शन स्ट्रक्चर वो नहीं रहेंगे जो होने चाहिए। इस समय हम लोग ऑटोमेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, ई-कॉमर्स, ई-बैंकिंग की तरफ, और इससे बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा। वैसे ही हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति काफी खराब थी, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति और बिगड़ जाएगी। और आप देखें तो एक सर्वाइवल पैकेज है, उसकी बहुत जरूरत है, जिससे कि गरीब आदमी की हम देखभाल कर सकें। और जो हमारा जो शहर है वहाँ पे भी काम बहुत कम हो जाएगा, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चाहिए रूरल एरिया और अर्बन एरिया में। और दूसरी बात, अभी हमारे 6 करोड़ जो कॉटेज सेक्टर की यूनिट्स हैं वो भी फेल कर रहे हैं, स्मॉल सेक्टर की यूनिट्स और मीडियम के वो 5 लाख हैं, वो भी जो बहुत बड़ी आफत में है। तो इनको बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा एम्प्लॉयमेंट तो वहीं से आता है। तो एम्प्लॉयमेंट बचाने के लिए हमें कॉटेज सेक्टर को बचाना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट की जो रिसोर्स पोजीशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गई है और उनके पास पैसा पर्याप्त नहीं रहेगा कि वो सारी चीजें कर सके। तो उनको बजट तुरंत अभी रिफॉर्मुलेट करना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाले समय बजट रिफॉर्मुलेट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू स्टेप इन एंड ड्राइव द चेंज। ये ड्राइव कैसे करेंगे चेंज, जिससे कि हमारी पॉलिसी ज्यादा इगैलिटेरियन हो जाए। तो मेरा ये कहना है कि जो परसेप्शन है इलीट रूलिंग क्लास का, उसको बदलने में भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होगा। They have to try and manage the perception of the ruling elite so that there are more egalitarian policies. Uneven development has been our bane since 1947. We have always gone for top-down policies, trickle-down policies in which the marginalized sections get more marginalized. There we have to focus how our policies, how our development paradigm will be rethought. And in that we have to talk about equity and consumerism. Consumerism is the opium of the masses, the new opium of the masses, you know. So consumerism also the reason why environment is getting destroyed. And it is the environmental destruction which has brought animals closer to the human beings, and that is why viruses are jumping. If you see in the last 20 years, we've had Ebola and MERS and SARS and MERS and Nipah, and before that also. So every 3 to 4 years a new virus is coming. So we have to be prepared for that, and therefore we have to rethink our development paradigm. What kind of openness of the economy, what kind of environmental protection, travel and so on. Thank you very much for your patience. किसी भी लोकतंत्र के लिए
एक सिविल सोसाइटी उसका 4th पिलर है। इनके जरिए ही जो जेंडर इक्वालिटी की बात उठी और ये माना गया कि नर नारी समता या मेन वेमेन के बीच में जो इक्वालिटी है वो सिर्फ भारत के समाज में नहीं, दुनिया के किसी समाज में नहीं है। और ये बात जब पहचानी गई कि क्यों नहीं है, तो फिर पुरुष सत्तात्मक समाज के बारे में लोगों को समझाने बताने की जरूरत पड़ी। महिलाओं को शिक्षा का अवसर नहीं मिला, महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया गया, महिलाओं के साथ जो हिंसा होती रही, उनको जो जिस तरह से पर्दों के अंदर रखा गया, आनंद जी ने इस बात को बड़े अच्छे से कहा। तो ये जो चीजें, ये सब कुछ जो महिलाओं के साथ सदियों से होता रहा कि महिलाएं पीछे ढकेली जाती रही, उनको सबजुगेशन और सबऑर्डिनेशन की स्थिति में ही रखा गया। कि हमारे देश का जो पॉलिटिकल गोल है उसमें कभी भी महिलाओं की जो नर नारी समता है उसको शामिल नहीं किया गया, आज तक नहीं किया गया है। और गांधी जी ने बहुत बार बहुत तरीके से इस बात को कहा भी कि महिला पुरुष बराबर है, समझदारी उनकी बराबर है, उनका सोच बराबर है। तो वो लगातार इस बात को कहते रहे, लेकिन उसकी तरफ ध्यान जिस तरह से दिया जाना चाहिए था या जिसको कि पॉलिटिकल गोल के रूप में लिया जाना चाहिए था, वो वहीं से वो पीछे हटता चला गया। और आजादी के बाद तो बिल्कुल संविधान में इक्वालिटी की बात कह दी गई, पर वो समाज में कैसे लागू होगी, कैसे वो इक्वालिटी आएगी, इसके बारे में कहीं कोई ना तो खाका तैयार हुआ, ना तो कोई संसाधन जुटाए गए, ना ही उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना। और इसी की वजह से फिर महिलाओं को सामने आना पड़ा। दुनिया में महिलाएं सामने आई, उन्होंने अपनी बात को कहा और उन्होंने सिस्टम को और खास तौर से लोकतांत्रिक सामाजिक ढांचे को, लोकतांत्रिक सरकारी ढांचे को अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश में लग गई महिलाएं। हालांकि हमने बहुत सारे तरीके अपनाए, जैसे सिविल सोसाइटी का जो रोल होता है कि हम एक इम्पोर्टेंट एक्टर तो है ही है, हम सब लोग एक सामाजिक कहते हैं जिसको कि एक सामाजिक संगठन होने के नाते, सामाजिक लोगों के होने के नाते हमारी सामाजिकता भी है और हमारी आवाज भी है। तो हम लोगों की आवाज को और महिलाओं के पर हो रहे संकट और महिलाओं पर हो रही हिंसा, महिलाओं के खराब स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा और तमाम बातों को हमने आर्टिकुलेट किया अलग अलग तरह से, रिसर्च के जरिए, एक्शन प्रोग्राम के जरिए और तमाम इस तरह के प्रयासों के जरिए, जिससे कि समाज में वो परिवर्तन आ सके। कम से कम हम आईना समाज को दिखा सके कि देखिए ये हमारा समाज है, हमारी महिलाओं की जो दुर्गति है इसके पीछे ये कारण है और इसको परिवर्तन करने के लिए, इसको बदलने के लिए आज हमें जिस तरह की तैयारी की जरूरत है, सोच की जरूरत है, आज तक वो सोच हमारे बीच में नहीं बना। दूसरी बात जो हमारे पास चेंज के रूप में आई, अब देखिए कि जो एक सोच है वो कहाँ तक चली गई। जो ये पुरुष सत्ता समाज की जो सोच है उसमें महिलाओं को ना सिर्फ एक्सेस नहीं दी गई, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है, सत्ता के गलियारों में उनके लिए जगह नहीं है, बल्कि साथ साथ में उनका होना ही अपने आप में एक तरह से स्वीकार्य नहीं है। इस समय जो हमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए और खास तौर से कोविड के बाद जो न्यू नॉर्मल है उसमें हमें मेन एंड विमेन एंड मेन दोनों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए इस परिस्थिति को बदलने में। जेंडर इक्वालिटी के बिना समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, ये कहीं कोई भी आगे बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक महिलाएं बराबरी का दर्जा नहीं प्राप्त करेंगी तब तक हम इसी तरह के तमाम तर्क दे दे के अपनी व्यवस्था को समझाते रहेंगे और हमारी व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। कोविड के बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, ये दो चीजें हमारे लिए प्रायोरिटी होंगी। जेंडर इक्वालिटी का हमारा एजेंडा होगा और तभी जाके ये सारे न्यू नॉर्मल की कंस्ट्रक्शन की बात में महिला और पुरुष को साथ आना होगा। जेंडर इक्वालिटी के संघर्ष में मेरी सबसे अपील है, जो आप सुन रहे हैं, कहीं भी सुन रहे हैं हमारी बात, ये संभव ही नहीं है कि सिर्फ समाज का एक अंग अपने हक के लिए संघर्ष करे और बाकी लोग उसको स्वीकार न करें। इसलिए जरूरी है कि महिला पुरुष साथ मिलकर इस परिवर्तन की लड़ाई में सामने आएंगे। हम लोगों के गांव में एक कहावत होता है कि सावन से कभी भादो कमजोर नहीं होता। तो ये भाद्रपद मास में हमने ये वेबिनार किया और इतनी बारिश हुई ज्ञान की, अगर हमने थोड़ा सा भी संजो लिया इसको और थोड़ा भी आत्मसात किया तो आज का वेबिनार बहुत सफल रहेगा। एक केवल मैं बात आप सबों के लिए बोलना चाहूंगा कि जब भी कोई संस्था का उद्भव होता है, कोई नहीं जानता है कि हम सिल्वर जुबली मनाएंगे कि गोल्डन जुबली मनाएंगे कि डायमंड जुबली मनाएंगे। शिद्दत से काम करना ही सबसे बड़ी खासियत होती है। यदि हम शिद्दत से काम करेंगे तो हमारा ये कारवां अपने आप बढ़ता चला जाएगा। विश्व केंद्र अपने मैनेजिंग ट्रस्टी के प्रति आभार व्यक्त करती है, अपने चेयरमैन
जी के प्रति आभार व्यक्त करती है। अभी चेयरमैन श्री रजत कुमार नारायण जी हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी श्री बजाज साहब हैं, अन्य बोर्ड के ट्रस्टी जितने हैं उनको आभार व्यक्त करता है कि सर आपने हमें, आप लोगों ने मौका दिया कि हम 59th एनिवर्सरी मना सके, और आप सबों का आशीर्वाद रहे तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये कब बढ़ेगा? जब हमारे सहयोगी पार्टनर्स होंगे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.